اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک عمل بیان کروں گا اور ایک بڑا خوبصورت اور پیارا سا وظیفہ بیان کروں گا۔ اور سب سے پہلے تو دعا ہے ان بھائیوں ان بہنوں کے لیے جو دعا کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے۔ اور دوسرا، جو میرا بھائی بہن کسی بھی مشکل کا شکار ہو یا اس کی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوتی ہو اس دنیا جہاں کی، تو وہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ نیچے کوئٹس میں لکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سب سے بہترین عمل ہوگا وہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو سینڈ کروں گا، آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دنیا جہاں کا ایسا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے جس کا حل ہمارے قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اپنے لیے نہیں بنایا، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ایک بار بھی رحمت کی نظروں سے نہیں دیکھا۔ چلے میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع اور عمل کی طرف۔ آج کا جو وظیفہ یہ اتنا پیارا اور خوبصورت ہے، اور اس میں ایک ایسا عمل ہے جس کے حوالے سے 2 فرشتے متعین ہیں، اور ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پکار کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ عمل کر لو، اور ان کی آواز کو انسانوں اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو وہ عمل کرے گا اس کا نصیب اور مقدر اللہ کی رحمت سے بدل جائے گا، اور جو وہ عمل کرے تو اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، اور جو وہ عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے ہی بددعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو تباہ و برباد فرما۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی فرشتہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہی کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی دعا 100% قبول ہی قبول ہے، لیکن وہ دعا کب کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خدا نخواستہ اگر کسی اللہ کے بندے اللہ کی بندی کو کوئی فرشتہ بددعا دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم خیر کامل کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو۔ تو اس میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتے، ہم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بدل بہت اچھا اور بہترین عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بارے میں تو حضرت علی شیر خدا کا فرمان بھی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کسی پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں تو وہ اللہ سے تجارت کر لے، تو یہ ایک قسم کی تجارت ہی ہے، اور یہ دنیا جہاں کی وہ تجارت ہے جس میں ہمیشہ تجارت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس مال ہی نہ ہو خرچ کرنے کے لیے تو کیا کیا جائے؟ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو دلوں کا حال بہتر جاننے والا ہے۔ جس بندے کے پاس صرف ایک کھجور کا دانہ ہی ہو، ایک کھجور ہی ہو، تو وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہتر اجر ہوگا۔ اور جن کے پاس مال ہے وہ اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی روزانہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ وہ قلیل مال اس کثیر مال سے بہتر ہے،
जो गफलत पैदा करे। और इनमें से एक फरिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह तो अपने माल में से खर्च करने वालों के नसीब खोल दे और उन खर्च करने वालों को इसका नेमल बदल अता फरमा। और एक दूसरा फरिश्ता ये बदुआ करता है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह बुखल करने वाले के माल को तबाह बर्बाद कर दे। तो इससे हमें सबसे पहला सबक ये मिलता है कि अल्लाह के रास्ते में खुले दिल से माल खर्च करना चाहिए और बुखल से बचना चाहिए। बुखल इंसान के माल को तबाह भी करता है और इंसान को अल्लाह ताला के सामने से गिरा भी देता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बखील आदमी अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता और सखी हमेशा अल्लाह का दोस्त होता है। तो ये मैंने आपको अमल बयान किया है कि हर मेरा भाई हर मेरी बहन कोशिश करे कि रोजाना की बुनियाद पर अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ खर्च जरूर करे जितना हो सके, और वो खर्च खुले दिल के साथ करे। और दूसरा मैं आपको एक वजीफा बयान करता हूँ, ये जो भी मेरा भाई बहन पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से माल और दौलत से नवाजा जाएगा। ये अमल और इसकी फजीलत मैं आपको बयान करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। ये कोई बहुत बड़ा फिक्रा नहीं है, कोई बहुत तवील कलमा नहीं है, छोटा सा कलमा है, लेकिन इसकी ताकत बेपनाह है। आप इसे पढ़ोगे और जो अल्लाह ताला से मांगोगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपको सब कुछ अता करेगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आपको वो वजीफे और अमलियात बयान करूं जिसका फायदा हम दुनिया और आखिरत में, बल्कि ज्यादा बेहतर ये कहना चाहूंगा कि जिसका फायदा हम आखिरत में और दुनिया में दोनों जहानों में उठा सकें। हमारे लिए आखिरत सबसे पहले है और दुनिया बाद में। और ये इतना जबरदस्त और इतना मुकद्दस कलमा है कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा मुबारक की जालियों पर 24 मरतबा लिखा हुआ है। इसकी एक छोटी सी फजीलत में ला इलाहा इल्लल्लाह की बयान करता हूँ कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बयान किया, अल्लाह ताला से मांगा कि मुझे ऐसा कलमा अता फरमाइए जिसको मैं पढ़कर आपकी सना करूं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना और सुन के कहने लगे, ऐ अल्लाह ये तो सभी पढ़ते हैं, मुझे कुछ स्पेशल यानी जो सिर्फ मेरे लिए हो मुझे वो अता करिए, मुझे वो अता कीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिसका मफहूम कुछ यूं है कि ऐ मूसा तुम इसे मामूली समझते हो, अगर एक पलड़े में सारी कायनात रख दी जाए और एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, यानी एक पलड़े में सातों आसमानों सातों जमीनें जो कुछ भी इसके अंदर है बाहर है सारा कुछ रख दिया जाए, और एक पलड़े में सिर्फ कागज पर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी होगा। और हदीस में आता है, ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 4300 है, एक शख्स जिसके 99 दफ्तर गुनाहों से भरे होंगे और हर दफ्तर यानी रजिस्टर का साइज, हर नामे अमाल का साइज उसके जमीन से लेकर आसमानों तक खोला जाएगा, यानी उसके 99 ऐसे रजिस्टर उसके फिल होंगे गुनाहों के, और सबका हिसाब व किताब चल रहा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा इसका भी हिसाब किया जाए। तो वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह मेरा हिसाब क्यों, मेरे तो 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए हैं। तो मेरा अल्लाह करीम फरमाएगा जिसका मफहूम कुछ यूं है कि आज इंसाफ का दिन है और जर्रे के बराबर भी नाइंसाफी नहीं होगी, और फरिश्तों से हुक्म होगा जाओ इसकी जो नेकी है वो भी दे दो। तो हदीस में आता है कि एक छोटे से पेपर पर लिखा हुआ होगा, हदीस में बताखा कहा गया है, यानी उसे जो बताखा दिया जाएगा छोटा सा कागज का टुकड़ा उस पर लिखा होगा उसकी नेकी ला इलाहा इल्लल्लाह। और देखें कि उसके 99 रजिस्टर गुनाहों से फिल है और एक रजिस्टर जमीन से लेकर आसमानों तक उसके सफात हैं। जब वो अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह ताला कहेगा इसका हिसाब किताब लाओ। तो वो अल्लाह ताला से अर्ज करेगा, हे मेरे अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं।
तो अल्लाह कहेगा आज तो इंसाफ का दिन है। जो कुछ होगा और उसके नेकियों के पन्ने में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, जिसको उसने सच्चे दिल से पढ़ा होगा यानी माना होगा। तो इस एक कलमे की वजह से उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और वो बंदा अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होगा। ये याद रखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक कलमा नहीं है, ये कलमा अपने साथ तकाज़े भी लाता है। ये कलमा वो चाबी है जिससे जन्नत खुलेगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा क्या है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और उसी से मांगे। बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत सारे पीरों फकीरों के पास जाते हैं। हाँ जाए, अल्लाह के नेक बंदे हैं, दुआ भी करवाएं, लेकिन अपने अमाल भी सही करें। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा सभी भाइयों से, सभी बहनों से, कि मेरा अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो भी नेकी है, जो भी खुशी है, वो मेरी तरफ से है, और जो भी तुम पे मुसीबत या कोई परेशानी है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, यानी गुनाहों का नतीजा है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, सदका दें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करें और सिर्फ इस एक कलमे की ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मबीन की सिर्फ एक तस्बीह करें, यानी 100 बार पढ़ें इसे नमाज फजर के बाद। तो यकीन कीजिएगा कि इसका रिजल्ट और इसका फायदा इतना बेहतरीन है कि आप अल्लाह ताला से दुनिया जहां की दौलत मांगो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको वो भी अता करेगा। कोई भी चीज मुश्किल है तो वो हमारे लिए है। अल्लाह की जात, अल्लाह की ताकत ये है कि वो कुन कहता है हो जा तो वो चीज हो जाती है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और हर मेरा भाई, हर मेरी बहन बाद नमाज फजर अव्वल आखिर 11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़े और सिर्फ इसकी एक तस्बीह करें, यानी 100 बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मबीन। तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में अल्लाह ताला आपके हालात को बदल देगा। और दूसरा, एक बात, कोई भी अमल है उसको अगर आप रोजाना करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर बहुत ज्यादा हो जाता है। उस कलमात पर जो मुतय्यन फरिश्ते होते हैं या जो उसके मौक्कल होते हैं वो आपकी उस हाजत के बारे में लग जाते हैं जिसके लिए या जिस चीज के लिए, जिस भी काम के लिए आप वो कलमात पढ़ते हो। अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नाम में बहुत ताकत है, हमें उसका कोई भी अंदाजा ही नहीं है। और कोशिश कीजिए कि इन कलमात को अपनी सारी जिंदगी का मामूल बना लें। सिर्फ 2 से 4 मिनट इसको पढ़ने में लगेंगे और आप गैरों के आगे हाथ फैलाने से बच जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सभी भाइयों, सभी बहनों को अपने गैब के खजानों से माल और दौलत और रिज़्क अता फरमाए और हर किस्म की मुश्किलात से और परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो कोई अल्लाह का नाम पढ़ेगा, सुनेगा, उसका अजर, उसका सवाब आपको और मुझे, हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।